Okay, it's recording now. All right, fine, ma'am. Okay. नहीं इसमें केवल वो नहीं हो सकता, इसको नीचे तो करो। स्लाइड्स तो नीचे करो, वो स्लाइड्स हम कर चुके हैं। सी दिस। Yes, ma'am. I can see it. Everybody can see it. Now this is the definition of the colony. ठीक है? Then it was given by Richard Hakluyt. Then why were the 13 colonies more radical than the rest? Okay, then the result of the 7 Years' War. I have discussed the Sugar Act, and now I'm on the Stamp Act. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, so I was on this point, no taxation without representation. This I have explained. Okay, Charles Townshend, that he had imposed duties on 5 items. Boston Massacre. Okay, Boston, since it was the port, it was, we can say, more aware, because there was so much interaction between the merchants and the educated people. So the people near the port, whether it is Calcutta, Mumbai, I mean, they are naturally more aware and more advanced than the people who live inwards, right? Okay, so in 17, the British troops, there was more troops. They were dispatched to Boston to discipline and to quieten this place, because it was British felt that it was growing more mutinous. And in 1770, we see that there was an interaction between the American colonists and the British soldiers, and it turned out to be Boston Massacre, because a number of Boston citizens, they were massacred, they were put to death, there was exchange of fire, and the British soldiers, they put to death a number of citizens. Now at this time, the 1770, when the turmoil was reaching its zenith, the new prime minister was Lord North, and he took the opportunity, since he assumed, as soon as he assumed the office, he took the opportunity and he repealed the Townshend Act, the duties which were not being liked by the American colonists. However, he retained a duty of 3 pence a pound. That was a very small amount on tea. Why he did this? Because he did not want to give the colonists, the American colonists, an impression that British Parliament has given up her right to legislate or to impose taxes on the colonists. क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो उपनिवेशवादी हैं, जो आपके अमेरिकन हैं, उनको कहीं ये इंप्रेशन मिल जाए कि हाँ, अब उनकी विजय हो गई और ब्रिटिश सरकार झुक गई और अब उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसी डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा टैक्स जो था वो उन्होंने उस पे चाय पे रखा। बट द कॉलोनिस्ट, वी नो, दे आर smart enough, they were not ready to accept this trick. वो इस ट्रिक में बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि वो इस फंदे में नहीं आए एकदम भी। They knew कि what was going to happen next, कि as soon as we accept this small tax, later on more taxes would follow, they would be imposed. So on a December night 1773, a number of Boston citizens, they were dressed up like
Mohawk Indians, Mohawk were the Indian tribes. ठीक है, they were dressed up like Indians, and they boarded a British ship. Here I would like to make a distinction that Indians जो हमारे भारतीय हैं वो उस तरीके से Indians हैं, इसी वजह से जो Indian tribes हैं वो भी Indians कही जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, दैट इज व्हाई दे डू इंसिस्ट कि हमको जो है भारतवासी कहा जाए, क्योंकि वो इंडियंस जो है वो वहाँ कंफ्यूजन एक हो जाता है, क्योंकि वो इंडियन ट्राइब से एसोसिएट हो जाता है वो वर्ड। तो ये बॉस्टन सिटीजन्स जो थे ये इसमें एक ब्रिटिश शिप पे चढ़ गए एंड दे threw overboard, they threw into the waters 342 chest of tea. चाय की ये पेटियां थी, लकड़ी की पेटियां होती हैं, दे आर कॉल्ड चेस्ट इन इंग्लिश, उनको जो था समुद्र में फेंक दिया। the British, they were not ready to accept this act, और उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं 5 acts they follow in 1774, 5 acts जिसको कि ब्रिटिश अमेरिकन्स ने संज्ञा दी intolerable, that we cannot मतलब they are surpassing a civil limit, so they are intolerable, तो उनको 5 intolerable acts का नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि बॉस्टन का पोर्ट जो था वो बंद हो गया, मैसाचुसेट्स में सेल्फ गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे who committed any crimes in America, they were not to be tried in America but they were to be tried in Britain, ठीक है, उनको वहां पे कोई सजा नहीं होनी थी ना। और जो रॉयल ट्रूप्स थे, जो भी ट्रूप्स आपके इंग्लैंड से आ रहे थे, उनका खर्चा जो था वो कॉलोनिस्ट को उठाना था। Quartered means they were to be stationed, they were to live in the colonies on the expense of the colonist. और क्यूबेक एक्ट पास हुआ, क्यूबेक वाज अ प्रोविंस इन कनाडा, और उसको हम देखते हैं उसका एक्सटेंशन कर दिया गया इनटू द अमेरिकन कॉलोनीज, और 3 जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उनका लैंड ले लिया गया, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट एंड वर्जीनिया। लैंड लेने के साथ साथ एक और चीज हुई, फ्रांस वी नो इट इज अ कैथोलिक कंट्री, फ्रांस इज अ कैथोलिक कंट्री, तो जो फ्रेंच सिटीजन्स थे उनको जो था रिलीजियस टॉलरेशन भी दे दिया गया। नाउ दिस वाज टू मच, क्योंकि रिलीजन हम देखते हैं जिस टाइम में, इवन टुडे रिलीजन इज इम्पोर्टेंट, और उस टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो पीपल वर, जो मास ऑफ द पीपल हु वर लिविंग इन द अमेरिकन कॉलोनीज, दे वर डिसेंटर्स फ्रॉम कैथोलिसिज्म, वो कैथोलिक फेथ में बिलीव नहीं करते थे, वो मोस्ट ऑफ देम दे वर प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट भी बहुत वेरीड चर्चेस के थे, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा स्टेट बना दिया जाए उन्हीं की जमीन लेके जिसमें कैथोलिक रिलीजन को भी एक्सेप्टेंस दे दिया जाए, दिस वाज नॉट डन। तो इसके विरोध में हम देखते हैं कि आपका फिलाडेल्फिया में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, in which all the colonies were represented apart from Georgia। ये लोग जॉर्ज 3 को एक पिटिशन भी देते हैं एंड दे रिक्वेस्ट कि जितने भी हमारे सिविल राइट्स हैं उनको रेस्टोर कर दिया जाए। साथ ही साथ जो कॉलोनीज में रहने वाले अमेरिकन थे, द कॉलोनिस्ट, दे वर आस्क्ड टू बी faithful to the American Association and that they should not import British goods। ये importation of जो मदर कंट्री के जो गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करने से क्या होगा, जो रेवेन्यू है वो मदर कंट्री को जाएगी, पेरेंट कंट्री को जाएगी, और अगर हम रिवोल्ट कर रहे हैं तो वी कैन नॉट अफोर्ड कि किसी प्रकार का फायदा मदर कंट्री को जाए। सो दिस वाज डन। Around this time a pamphlet was written. Why it is called a pamphlet? Pamphlet is different from a book because it is not a very thick presentation, बहुत ज़्यादा pages इसमें नहीं होते हैं, it is easier to carry, शायद इसी वजह से उस समय pamphlets वगैरह लिखे भी जाते थे। See, उस समय इतने एजुकेटेड लोग नहीं होते थे। एक अगर आप पुराने समय की कोई फोटोग्राफ वगैरह देखेंगे तो उसमें होगा one person is reading a newspaper or one person is reading a book and a number of people are sitting around him। भारत में अगर आप देखें तो किसी पेड़ के नीचे वो दिखाया जाएगा, तो वो क्यों होता था, बिकॉज द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल वाज लेस, वो खड़े होके पढ़ते थे और बाकी सब सुनते थे। तो इसमें अगर कोई बहुत मोटी किताब आप लिख देंगे तो लोग आसानी से ले नहीं जा पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। तो पैम्फलेट वाज पब्लिश्ड, और इसको लिखने वाले थॉमस पेन थे, हु हैड रिसेंटली इमिग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड,
and he was a radical. He did not believe, radical क्यों है? Because he did not believe in monarchy. He, in this pamphlet which was named Common Sense, इसका टाइटल भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि this is common sense that monarchy should go. Monarchy which was an accepted practice in यूरोप, तो इसको अब चले जाना चाहिए, ठीक है. तो देयर शुड बी नो फीलिंग ऑफ वेनरेशन फॉर द ब्रिटिश मोनार्की. वेनरेशन क्या होता है? जब आप किसी को ईश्वर के समान मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा ये चीज नहीं होनी चाहिए. फिर हम देखते हैं 4 जुलाई 1776 को यू हैव द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. दिस डे इज स्टिल सेलिब्रेटेड इन यूएसए एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए. जैसे हमारा 15 अगस्त है, उनका 4 जुलाई है. This was mainly written by Thomas Jefferson, और इसमें हम देखते हैं रूसो की राइटिंग्स का इफेक्ट था, क्योंकि उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया था कि why we have the right to revolt, कि हमें रिवोल्ट करने का राइट क्यों है. उनका ये कहना था कि हम इंग्लिशमैन हैं एंड वी हैव सर्टेन बेसिक राइट्स, तो अगर वो राइट्स हमारे ब्रिटिश उसमें कॉलोनी में इंश्योर नहीं हो रहे हैं, तो वी हैव द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्क. इस समय हम देखते हैं कि अमेरिकन में एक डिवीजन हो भी जाता है बिटवीन द पेट्रियट्स एंड द टॉरीज. पेट्रियट्स हु आर faithful to their own colonies and who want to make their colony independent, and Tories who were faithful towards the British crown. But we see slowly the Tories, either they were silenced. Now here silenced means being put to death, or they were suppressed in some way or the other. And patriots, though they were less in number, but they dominated, और उनके they operated with such energy, zeal and enthusiasm कि उनका जो पूरा एक लहर पूरी कंट्री में दौड़ जाती है that we have to make America independent. The 13 American colonies should be independent. जॉर्ज वॉशिंगटन हम देखते हैं वो सुप्रीम कमांडर हो जाते हैं अमेरिकन के. नाउ फिर इसमें एक वो आता है कि द कॉलोनिस्ट दे आर नॉट फाइटिंग अलोन. वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं, उनको और कौन सपोर्ट देगा? उनको फ्रेंच सपोर्ट देते हैं, ठीक. फ्रेंच सपोर्ट फॉरन नहीं आता. बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज इन पेरिस. ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस द फ्रेंच अथॉरिटीज दैट दे शुड गिव सपोर्ट टू द अमेरिकन कॉलोनिस्ट. बेंजामिन फ्रैंकलिन ये बता रहे थे, चाह रहे थे कि उनको फ्रेंच सोल्जर्स का सपोर्ट मिले सिंस दे वर फाइटिंग द ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है. अमेरिकन की कोई ऐसी बहुत स्टैंडिंग आर्मी वगैरह नहीं थी. दे हैड एंथुसियाज्म ऑन देयर साइड. एंथुसियाज्म है, लेकिन एज सच कोई बहुत वैसी आर्मी नहीं थी. तो नेचुरली दे आर वांटिंग द सपोर्ट ऑफ बिग यूरोपियन नेशंस, फ्रांस बीइंग वन ऑफ देम. लेकिन फ्रांस ने फॉरेन सपोर्ट नहीं दिया. ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में शुरू हो जाती है. 1778 में जब न्यूज आती है कि बैटल ऑफ साराटोगा में अमेरिकन कॉलोनिस्ट जीत गए, तब फ्रांस तैयार होता है कि ओके वी विल सेंड आवर फोर्सेस to America, to the 13 colonies, so that they can fight against the British. इससे पहले क्या हुआ? 7 years war हुआ. 7 years war में फ्रांस was defeated by Britain. Okay, तो naturally they are looking for a moment. वो मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से वो ब्रिटेन से बदला ले लें. 7 years war, during the 7 years war, France had lost her colonies. She lost her colony in India. She lost her colony in Canada. तो naturally ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि ठीक है, now we have the moment, we have an opportunity, and we can snatch, we can help these 13 colonies to become independent. ठीक है. फिर हम देखते हैं 1779 में स्पेन, और उसके बाद 1780 में हॉलैंड भी ज्वाइन कर लेता है. 1783 में अमेरिका आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है. इसमें इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं 2 ट्रीटी साइन होती हैं. पहली ट्रीटी जो है दैट इज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए, ठीक. वॉर में जितने दिन सपोर्ट मिला फ्रांस का, दैट वाज ओके फॉर द अमेरिकन्स. लेकिन उसके बाद में सीइंग द रेवोल्यूशनरी, एक जो डिस्टर्बेंसेस उस समय फ्रांस में चल रहे थे, उसको देखते हुए अमेरिकन्स चाहते थे कि अब फ्रांस से उनका साथ छूट जाए. वो फ्रांस से अलग हो जाना चाहते थे, तो वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ अलग संधि कर लेते हैं. उसमें वो फ्रांस को शामिल नहीं करते. एंड ग्रेट ब्रिटेन वाज इक्वली रिलक्टेंट कि कोई जॉइंट संधि हो, बिकॉज दे डिड नॉट वांट
कि ठीक है, दे वर रिजाइंड टू द फैक्ट कि अमेरिकन कॉलोनीज वर नाउ फ्री ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल, कि उनको उससे तो ब्रिटिश कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन कम से कम दीज कॉलोनीज, अर्स्ट वाइल ब्रिटिश कॉलोनीज, जो एक टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी, अब फ्रांस की सपोर्टर्स ना बने। तो हम देखते हैं दो ट्रीटीज पे सिग्नेचर होते हैं। वन इज द ट्रीटी ऑफ पेरिस, दिस इज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूएसए, which were formerly 13 अमेरिकन कॉलोनीज। और दूसरी ट्रीटी है वर्साई की, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन एक तरफ था और दूसरी तरफ आपका फ्रांस और स्पेन था, और इनके साथ ये संधि आपकी होती है। Then coming to the significance, American War of Independence, first revolt of the colonial people, उपनिवेशी लोगों का पहला रिवोल्ट था और सक्सेसफुल भी होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन रेवोल्यूशन। हम इसको अगर आप बहुत सी बुक्स में देखें तो अमेरिकी क्रांति के नाम से भी आपको ये चैप्टर मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज एक कॉलोनी जो कि ब्रिटिश कंट्रोल में थी, वो विद इन 10 years हम देखते हैं अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं ब्रिटिश कंट्रोल से। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स अ ड्रास्टिक चेंज। क्रांति क्या होती है? बहुत तेज गति से आया बदलाव होता है, ठीक है। हम पहले 2 पत्थर घिस के आग जलाते थे, आज हम आराम से किचन में खड़े होके बिना धुएं के खाना बनाते हैं। नाउ दिस इज नॉट रेवोल्यूशन एट ऑल, बिकॉज वी हैव पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस टू कम टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए ये रेवोल्यूशन है। हिस्ट्री में आप आगे अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, आप हिस्ट्री परस्यू करेंगे, यू विल सी 5-10 years तो हिस्ट्री गिनता ही नहीं है, ठीक है। दे डोंट काउंट इट एट ऑल, ठीक। वो तो समरी में लिख दिया जाता है कि हाँ 5 सालों में ये चेंजेस हुए, दे डोंट डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है। तो इस पे कभी ध्यान दीजिएगा। दैट इज व्हाई दिस इज अमेरिकन रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन इस वजह से भी है बिकॉज दिस लीड्स टू अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ जब ये कंट्री नेसेंट मींस न्यू बॉर्न, जब ये नवजात स्टेज में है, people did have doubts कि क्या ये survive करेगा कि नहीं करेगा, but it did survive. It stood the test of time, and today we do say कि oldest democracy USA and the biggest democracy India। ये जवाब आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये चीज होती है। Then you have the first written constitution। इससे पहले किसी भी देश का लिखित आपका वो नहीं था, संविधान नहीं था। लिखित संविधान की जरूरत क्यों थी? इसलिए जरूरत थी, देखिए जो कंट्रीज पुराने सिस्टम से चले आ रहे थे, उनके यहाँ कुछ ट्रेडिशंस थे, अनसेड थे, अनरिटन थे, लेकिन एक ट्रेडिशन, कुछ ये परंपराएं चली आ रही थी, तो उससे राजा भी ज्यादा अलग नहीं हटते थे, क्योंकि राजा स्वयं डरते थे कि प्रजा उनके खिलाफ चली जाएगी, ठीक है। वो कुछ मामले में निरंकुश होते थे, दे वर डिस्पॉट्स, but still they did keep the opinion of the people in mind, right? Now here, when there is no king, no established traditions, so how to run a country until and unless you have a written set of laws? And what are these written set of laws? They are nothing but the constitution. That is why you have the first written constitution of the world, and it was the first federal government. This was a novel experiment. See, भारत में जैसे इसका भारत बिल्कुल opposite है। भारत में हमारा कौन सबसे ज्यादा मजबूत है? हमारा सबसे ज्यादा मजबूत है केंद्र, और हमारे स्टेट्स जो हैं वीक रखे गए हैं। लेकिन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें स्टेट्स को ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। अमेरिका में पहले एक स्टेट का संविधान होता है और एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। इन इंडिया वी हैव जस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हमारे यहाँ स्टेट्स केवल इसलिए हैं जस्ट टू मेक आवर एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, ठीक है। इसमें और कोई वो नहीं है। हम किसी तरीके से वो नहीं कर रहे कि स्टेट्स को कुछ हम पावर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। There was declaration of rights as well in America, क्योंकि ये फील किया गया कि अगर एक फेडरल गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो स्टेट्स के पावर्स को हो सकता है क्रश कर दे। तो स्टेट्स ने इंसिस्ट किया, तो वहां डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स भी होता है, जिसमें जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको बेसिक
राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे उनका राइट टू वर्शिप था, राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक, दे कुड नॉट बी जेल्ड और पुट बिहाइंड बार्स फॉर विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द इम्पैक्ट ऑन फ्रांस। इम्पैक्ट ऑन इंग्लैंड भी है। इंग्लैंड के लिए एक सेटबैक था कि 13 कॉलोनीज उनके हाथ से निकल जाती हैं, तो वो भी अपने सिस्टम में सुधार करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं वो हम फ्रांस में देखते हैं, और इसी के कारण जो है फ्रांस में क्रांति आती है। फ्रांस में क्रांति आने के बहुत से कारण है, लेकिन एक कारण जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, what had happened, the French soldiers, they had gone to fight against the British. वो गए तो इसी एम से थे, लेकिन हुआ क्या था, they got to see a new land. वहां पे उन्होंने एक नए प्रकार का देश देखा। कैसा देश था वो एक ऐसा देश था जहां पे राजा रानी आपके नहीं थे, और even during the war what they saw that even if the taxes were to be passed, उसका जो पूरा प्रोसेस थी वो फॉलो की जाती थी, बाकायदा असेंबली होती थी और अप्रूवल लेके ही टैक्सेस लगाए जाते थे, समथिंग दैट वाज नॉट डन इन फ्रांस। और ये फ्रांस में रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बना। Lafayette, under whose command the French army went to America, when he returns to America, though he belonged to a noble family, वो एक सामंती फैमिली के थे, लेकिन जब वो आपके लौटते हैं फ्रांस, he is a changed person. वो काफी लिबरल हो जाते हैं और वो मानते हैं कि नहीं, सिटीजन्स के कुछ उनके ड्यू राइट्स हैं वो देने चाहिए। owing to French participation in the American the War of Independence, उनके जो थे आपके जो एक उनकी ट्रेजरी पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, बिकॉज इफ यू आर फाइटिंग अ वॉर यू हैव टू स्पेंड मनी। तो इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, उसके लिए बोरो करना पड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसके कारण ट्रेजरी पे भार बढ़ गया। तो ट्रेजरी पे जो भार पड़ा उसके कारण क्या हुआ कि स्टेट्स जनरल समन करनी पड़ी ताकि वो नए टैक्सेस को अप्रूवल दे सके, एंड दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वो जो आपकी where the ball was set rolling, that was set rolling by the American War of Independence, कि इतना ज्यादा बोझ पड़ गया आपकी फ्रेंच ट्रेजरी पर कि they had to seek the approval for new taxes. That is why जो आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका असर केवल अमेरिका ही में होकर नहीं खत्म होता है, फ्रांस को इफेक्ट करता है, एंड देन वी सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स हैं वो पूरे यूरोप में आपके स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, आपको कॉज एंड इफेक्ट पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि अच्छा कॉज तो ये थे, इसका इफेक्ट कहाँ तक हुआ, क्योंकि जब आप इफेक्ट समझ जाएंगे तो जो वो इफेक्ट हैं वो एक नए प्रॉब्लम के कॉज बन जाएंगे। ऐड करेक्ट हाँ मैम, कैन आई रिक्वेस्ट यू if they want to ask any questions? I think अब सेकंड वाले का भी आपका टाइम खत्म होने वाला होगा। जी मैम। मैम, there is one question. Why was slavery integrated into colonial American society and economies by the mid 1700s as described by some historians? This is a question from Sukriti Gupta. Okay, very good question. See, when we have the American Declaration of Independence, we have one then you have the slogans of liberty, equality, and fraternity. Now, equality means all are equal. Especially in the we had the we had the slaves who were of African origin. They were working, and in some of the plantation of practice was some 200 years old. That means in 1783 it was 200. 1773 started.
There is some Janvi, I think it's Janvi. Janvi, mute yourself, please, beta. Okay, now it's okay. Okay, so this practice was some 200 years old, and what the founding fathers found, that is George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. I mean, they were also called sons of liberty. What they felt that if they would insist on freeing of the slaves or on eschewing slavery, to abolish slavery, then maybe America would face a partition, or say disintegration between North States of America and South States of America, because in the South States of America this practice of slavery was well entrenched, बहुत गहरी उसकी जड़ें थी और उनके सोशल सिस्टम का वो पार्ट था. I would unfortunately ये जो अभी जॉर्ज फ्लॉयड the incident that happened in America, ये आपकी फिल्म गॉन विद द विंड, इसको जो है दैट हैज बीन टेकन ऑफ द सोशल मीडिया. अदरवाइज हम बच्चों से यही कहते हैं, अगर आपको मौका मिले यू गो थ्रू दिस नॉवल, दो इट्स अ बल्की नॉवल 1000 पेजेस की है गॉन विद द विंड, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे उसमें स्लेवरी सिर्फ ये नहीं था कि वो अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर, स्लेव्स उनके फैमिली में रहते थे, साथ रहते थे. ठीक है, ओके, नाउ आई हैव जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, क्योंकि आपने होस्ट हम ही को बना दिया है. ठीक है, ओके, सो there's one more question, ma'am. हाँ, आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट. ठीक है, एक और सवाल. हाँ, आप बताइए. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, Ma'am, there is a question by Deshraj Singh Yadav. okay. What things of American war inspired the French Revolution? And he wants you to explain in point-wise manner. What were the ideas that inspired the American Revolution? Okay, first and foremost, see, as I said in my lecture itself, that they saw a new land first, not ruled by king or queen, right? And even in the midst of the war, conditions of the war, if money was required and taxes had to be imposed, the meeting was summoned, that is, the legislature was summoned, and the act was passed, only then the taxes could be collected. The similar thing that they wanted when the meeting of the States General began in May 1789 in France. This is what they wanted, that if you want to have any new tax on the people, on the common people, then first change the system. Why some people should be exempted from payment of taxes? ठीक है, तो जो सोसाइटी की इक्वालिटी उन्होंने वहां देखी आपके अमेरिका में. सी, अमेरिकन कॉलोनीज जैसे सेटल हुई थी, वो तो वहां पे पहले आपके रेड इंडियंस रहते थे. they had cleared, the colonists who went to settle in America, they had cleared the forest, उन्होंने जंगल साफ किए थे और वो तब वहां खेती वगैरह करके रहने लगे थे. so there was no higher class or lower class. ठीक है, रिच और पुअर लोग होते हैं, लेकिन कोई सामंतवादी हो, कोई राजा हो, कोई राजघराने से जुड़े हो, ऐसा नहीं था वहां सिस्टम. तो जब ऐसा सिस्टम नहीं है तो नेचुरली उससे फ्रेंच माइंड पे बहुत ज्यादा असर पड़ा कि ऐसा हम अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते. दो दैट वाज नॉट पॉसिबल, बट डेफिनेटली दैट बिकेम द कॉज ऑफ रिवोल्ट. फॉर एग्जाम्पल, जब उनको वर्साई के कुछ से मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते, तो कहने लगे क्यों नहीं मीटिंग कर सकते, क्या अमेरिकन ने पूछा था कि मीटिंग नहीं करनी है, क्या किंग जॉर्ज से पूछा था, राइट? तो और उसी से इंस्पायर्ड होके देखिए आपका जो थर्ड स्टेट है उसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया. ठीक, और यही कुछ वजह थी. अब आप पूछ रहे हैं तो एक एक करके मुझे जो चीजें याद आ रही मैं बता रही हूँ कि जब देयर वाज मार्च ऑफ वुमेन फ्रॉम पेरिस टू वर्साई, जब वर्साई तक ये जुलूस निकला था, तो इसमें आप याद कीजिए ऐसा नहीं था कि सोल्जर्स नहीं थे, लेकिन लफायते का मानना था, हु वाज कमांडर व्हेन द फ्रेंच आर्मी हैड गॉन टू यूएसए. he said कि नहीं, लोगों की जो डिमांड है वो जस्टिफाइड है, they are asking for bread. He had asked the soldiers to maintain a respectable distance from this procession, otherwise इस procession को क्या रोका नहीं जा सकता था.
but it was Lafayete's command कि नहीं आप इस procession को नहीं रोकेंगे, and he had sent the soldiers कि आप वापस अपने barracks में जाइए, you are not going to stop this procession because this is justified. और फिर वही बात है कि अब लफायते भी बहुत ज्यादा अपने उसमें नहीं जा पाते हैं, तो जब फ्रांस में लुई 16 को हटा दिया जाता है और उनकी जगह रिपब्लिक घोषित हो जाता है, देन ही सरेंडर्स टू द ऑस्ट्रियंस बिकॉज ही कैन नॉट गो दैट फार. आप अपने टाइम में रेडिकल होते हैं, आप अपने टाइम से आगे सोचते हैं, लेकिन बहुत आगे आप भी नहीं सोच सकते. यू हैव टू कीप योर ग्राउंड्स ऑन फीट ऑन द ग्राउंड. सॉरी, ठीक है, आप अपने ही सिस्टम में तो रहेंगे, उससे बहुत बाहर नहीं जा सकते. Okay, any other question? 5 minutes. Ma'am, this is the last question. What were some problems for Native Americans by settlement of British American in early 1600s and mid 1700s? Could you just repeat? What were the problems faced by the Native Americans when the British Americans started settling in the continent? Now here I would say, I mean, जैसे books भी इसके ऊपर लिखी गई हैं, and I mean वो बहुत ही डार्क नॉवेल्स हैं, एंड दिस इज अ फैक्ट कि जैसे जैसे हमारे यूरोपियन सेटल कर रहे थे अमेरिका में, ये जो हमारे अमेरिंडियंस थे, ये जो हमारी इंडियन ट्राइब्स थी, दे वर बीइंग पुश्ड इनवर्ड्स एंड दे वर बीइंग पुश्ड टू सच प्लेसेस जहाँ की वेदर भी नहीं अच्छी थी, जहाँ पे लैंड भी नहीं फर्टाइल था. जो फर्टाइल लैंड था वो तो सब आपके ब्रिटिश अमेरिकन हैं या जो बाद में सेटल करते हैं, सब लेते चले जाते हैं. तो हियर आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो अमेरिकन who talk of human rights, अगर हम देखें तो their path of settlement was that they just ignored these Indian Americans, जो sorry these Amerindians, इनको इंडियन ट्राइब्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई नाउ दे आर हैंडफुल. बहुत ही कम नंबर में अभी अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं. जो अमेरिका में अब रहते हैं, दे आर बेसिकली पीपल दो, मतलब वैसे तो अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट. आपके वहाँ यूरोपियन डिसेंट के भी लोग हैं, अफ्रीकन डिसेंट के भी लोग हैं, इतने संख्या में. वी हैव एशियंस, इंडियंस, आपके चाइनीज भी हैं, सब रहते हैं, जापानीज भी हैं, लेकिन जो उनके ओरिजिनल थे अमेरी इंडियंस, वो अब हैंडफुल ही रह गए. they were simply they were put to death. There was a saying, the best Indian is a dead Indian. ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिक चीज क्या थी, ये जो अमेरी इंडियंस थे, they were not aggressive from the beginning. They taught the earlier colonists how to grow corn in the colonies. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, जो ट्राइब्स हैं, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ट्राइब्स दैट वी हैव इन इंडिया आल्सो. फॉर देम फॉरेस्ट और अ पीस ऑफ लैंड, इट इज टू बी हेल्ड इन कम्युनल ओनरशिप. वो इंडिविजुअल ओनरशिप में नहीं होता है. लेकिन जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट था वो था कि जब आप एक फॉरेस्ट के लैंड को साफ करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके चारों तरफ यू एनसर्कल इट, आप उसको अपने पोजीशन में ले लेते हैं, एंड यू डोंट अलाउ अदर्स टू यूज इट. जबकि जो ट्राइबल रूल्स हैं, वो लैंड इज फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज सपोज्ड टू शेयर इन द व्हाटएवर प्रोड्यूस यू गेट फ्रॉम द लैंड. ठीक है, तो ये इसके कारण हम देखते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. Fine. Okay. Ma'am, I'm not going further with any questions because there's hardly any time left. Okay. And on behalf of Maharaja Bijli Pansi College and all the students who joined this lecture today, I would take this opportunity to thank you for this extremely detailed and scholarly lecture. Ma'am, we really benefited from this lecture because this was dealt in with such detail which otherwise would not have been possible. And I would like to say, you could have taken it in detail. You can do it. You have the capability and the potential. So don't just exaggerate. Since you have given me as a project, that is why, I mean, I should admit that this is the first PowerPoint presentation that I have made. And that is why there was so much problem in sharing this screen and all those things, because even I'm new to this technique. I've never ma'am, all of us are, but nevertheless, ma'am, thank you so much, and we really hope that we'll have more lectures from you, and we really hope to have our students meet from the university and our college. We'll be really inviting you over to college. Actually, we are all one university.
See, Yes, ma'am. now in the modern days, you cannot just segregate, right? Yes, We ma'am. are all part of one university, right? Yeah. And ma'am, I like to contribute some e-content to the Western history study material as well. Sure, Uh, sure, I ma'am. think you have Please, that will be contributed some great, ma'am. e-content to the Indian history. You have contributed Yes, ma'am. some e-content there. Please Yes, ma'am. I've sent it and select send few it of to your the topics, the university for best topics, the ratification. topics that you like best. We All are right. welcoming contributions from the colleges also. All right, ma'am. I'll And send you I mine. have a WhatsApp group of the college teachers, and I'll include you in that group. Thank you In a so day much. or two, we will get instructions from the university that how college teachers are supposed to give us the e-content, All right. and then I'll let Please you let me know, ma'am. Fine, know. ma'am. Okay, thank you Thank you so so much. much. I Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. time to go and say bye. You have to. Uh, You end the Thank you. meeting, ma'am. Thank you, Sanobar. Oh, Thank you, ma'am. ma'am. Bye बाय bye. मैम, थैंक यू मैम. आप मीटिंग एंड कर दीजिए. हाँ बिल्कुल मैं कर देती हूँ. अपने आप ही एंड हो जाएगी. जस्ट Students, you can leave. हाँ